ये देखता हूँ कि आज हुजूर के पैदाइश के महीने में और नगमाए मोहम्मदी बजा रहा हूँ। अब देखना ये है कि रब ताला हमें कितना नवाजता है। आप लोगों के बीच में पेश है, लीजिए। हमारे तबले पर संगत कर रहे हैं आमिर भाई और कीबोर्ड प्ले कर रहे हैं साजिद भाई। तो आइए आप लोगों के बीच पेश है। We have amongst us Mr. Anil Kumar Chauhan, who is known for his Nath recitation, and he is very good with consistently demonstrated a strong commitment to the welfare of the people, which has been recognized on the national level. Ashwa, I am correct. Throughout his career, he has been a champion of education. Yes, I agree, you were an education minister and you visited these minority institutions. Thank you for that. Sports, yes, we all know that he was NCA Walo. Yes, he was the president. We want you back again, sir. And social development, and social development. His leadership has brought about tangible progress in the community, from advancing infrastructure to creating opportunities for youth development.
His integrity and tireless work for the betterment of the society have made him a true inspiration for all of us. Advocate Ashish Sherarji is known for his forward-thinking vision and relentlessly dedication to public service. Whether it's his role in championing youth development or advocating for better urban infrastructure, his efforts continue to inspire positive change. We are honored by his presence today and we look forward to hearing his valuable insights and continuing to learn from the exemplary leadership. Thank you, Ashish Sherarji, for being our guest today and for giving us an opportunity to felicitate you on this occasion. I request Dr. Akhtar Hassan Rizvi, the President of the Rizvi Education Society and the Dr. Rizvi Educational Trust to come on the stage to felicitate. Can I have the principal escorting your president, please? Come on. This is something unique that we do for unique people. So I'm sure he's going to love it. He's going to preserve it. This is most important. नहीं आशीर्वाद को ले जाए. No, it has to go on the back. He'll turn back. Come on, the clock should not stop. This is a special memento. Can you just move the press? Can you move, please? Can you move? There are VVIPs sitting on the first row. Can the press move this side? No blocking the VIPs, please. Thank you so much. You're amazing. You're amazing. Move this side. You're amazing. This is a special trophy cloth for him. Whenever Ashibai, when you put it on the table, you find me there. Just open these and you get it. Ashpai, these are special glass made for today, which says the Quran, the Bible, the Vedas, the Guru Granth and the Avastha is saying the same thing, that is God is one. आशीष हम चाहते थे कि आप और रुके, तो हमने आपके लिए केक मंगाया है, तो आप नहीं, उनका केक अलग है, उनकी प्रेस्टीज अलग है, उनका फेलिसिटेशन भी अलग है और उनके साथ जुड़ने के लिए बहुत अच्छे लोग और हम आसिफ भाई भी आगे देखिए. अस्सलाम वालेकुम. थैंक यू फॉर कमिंग. कैन आई हैव द केक प्लीज? बैठ जाओ सर. लाउडली हंसना और ताली बजाना, ऐसे तो बड़े शोर करते रहते हैं लोग. सर बिना बोले कैसे जाने देंगे? पॉलिटिशियंस को दो चीज पसंद है, स्टेज और माइक. मंच पर उपस्थित डॉक्टर रिजवी साहब, रुबीना जी और विशेष रूप से इस कार्यक्रम में भी उपस्थित हमारे विधान परिषद के विपक्ष के नेता
सम्माननीय अमृता जानवी जी, हमारे साथी एमएलए, हमारे भाई दोस्त अमीन भाई पटेल, आसिफ भाई, मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के हमारे वाइस प्रेसिडेंट संजय नाइक, अपेक्स काउंसिल के मेंबर सूरज सामंत और बाकी सभी यहाँ पर उपस्थित सभी गेस्ट। मैं बड़ी लंबी तकरीर नहीं करूंगा क्योंकि हम सब ने, रूबीना जी ने हम सबको क्यों बुलाया है और उसके साथ एक हिस्टोरिकल डे हम सब लोग साथ में मना रहे हैं। और उन्होंने जिस प्रकार का प्रेजेंटेशन यहाँ पर किया और अपनी बातों को रखा, तो हम सबको इससे कोई ना कोई जीने की सीख, सही तरीके की जीने की सीख हम सबको मिली है और उसी दिशा में काम करना, यही समाज सेवा का और लोगों की सेवा करने का काम हम सब मानते हैं, उसी दिशा में चलते हैं। ये अवार्ड 1 साल का मुझे मिला, अमीन भाई को मिला और हमारे और दोस्तों। They were hostile toward those who became Muslims, persecuting. तैयबा पर आज रिजवी कॉलेज में जो प्रोग्राम रखा गया था, आप यहाँ तशरीफ लाए थे, क्या कहेंगे इस मौके पर? देखिए, आज हमारी बहन एडवोकेट रुबीना रिजवी जी और अख्तर रिजवी साहब ने एक प्रोग्राम रखा था सीरातुन नबी के मौके के ऊपर, प्रॉफिट फॉर ऑल। हम सब तमाम मुख्तलिफ सियासत पार्टियों को बुलाया, उलमा इकराम को बुलाया और तमाम लोगों को यहाँ पे उन्होंने बुलाकर एक मैसेज देने की कोशिश की। और जाहिर सी बात है, प्रॉफिट फॉर ऑल के अनुमान तो यही है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमारे हुजूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की
सदके तुफैल में पूरी कायनात को बना दिया। वो तो सबके लिए चाहते थे कि सब एक साथ होकर रहे, अमन शांति का पैगाम रहे, उसी के ऊपर बात करने को बुलाया। काफ़ी सियासत पार्टियों ने अपनी अपनी बात रखी, हमने भी अपनी बात रखा और हमने कहा कि बिल्कुल सही बात है, लेकिन कुछ नफरती लोग ऐसे आ गए हैं जो अपनी सियासती रोटी गर्म करने के लिए अब उनको एक ही मौका मिलता है जब डेवलपमेंट और विकास में फेल हो जाते हैं, जब आम जनता सवाल करने लगती है, तब ध्यान भटकाना है, जवाब नहीं देना, तो फिर एक ही चीज चलती है, जाओ मुसलमानों के खिलाफ अनाप शनाप बकवास करो, इस्लाम को गाली दो, हुजूर की शान में गुस्ताखी करो और ध्यान सबका भटका दो। अब यही हुआ। हमने कहा कि कुछ दिन पहले ही आपने देखा किस तरह से रामगिरी आ गया, अचानक से हमारे हुजूर मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी किया। और यकीन मानो, भारतीय मुसलमान ही नहीं, पूरे दुनिया के मुसलमानों के दिलों को उसने ठेस पहुंचाई अपने अल्फाज से। हमने एहतजाज किया, एफआईआर रजिस्टर की, अरेस्ट नहीं करते। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उसके साथ स्टेज पे बैठते और बोलते हैं इसके बाल भी बागा नहीं होने दूंगा मैं, तो बताइए क्या होगा? क्या ये संविधान के दायरे में रहकर सरकार काम कर रही है? सलमान अजहरी का एग्जाम्पल देता हूँ, उन्होंने तो किसी का नाम नहीं लिया, एक अशार पढ़ा, उनको उठा के जेल में डाल दिया। तो कानून अलग अलग क्यों? अब फिर वो आ गया दूसरा, वो नफरती चिंटू इतना सा स्कूल बॉय, वो आके बोल रहा है कि मुसलमानों को मस्जिद में घुस के चुन चुन के मारेंगे। कैसा मारेगा भाई? आ जा मस्जिद में, आएगा तो तू डोर टांग के ऊपर, लेकिन जाएगा तो स्ट्रेचर पे, यकीन है मेरे को। 5 साल का बच्चा दौड़ा लेगा। तो इस तरह की बात करना, फिर 24 घंटे का टाइम तो सारे मुसलमानों को खत्म कर देंगे, आजा खत्म करके दिखा दे। अरे क्या हलवा है क्या? देखो, मुसलमान डरता किसी के बाप से नहीं है, मगर हम लोग कायदे कानून का पालन करते, संविधान को मानते हैं, इसलिए हम लोग कोई इस तरह का कदम नहीं उठाते। मगर हमारी खामोशी को हमारी कमजोरी समझ जाया जाता है, ये नहीं समझना चाहिए। नितेश राणे जिस पार्टी से आते हैं उसी पार्टी के मुंबई अध्यक्ष को भी आज इस कार्यक्रम में दावत दिया गया था, इस पर क्या कहेंगे? वो आए थे लेकिन मेरी मुलाकात नहीं, मैं देखा भी नहीं, मैं थोड़ा सा लेट। अगर आते तो मैं तो उनके सामने बोलता, क्यों नहीं बोलेंगे? अरे भाई, संविधान है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन है, सवाल कर सकता हूँ मैं, टीवी पे करता हूँ तो यहाँ भी कर सकता हूँ मैं। सर, कहीं ना कहीं गृह मंत्रालय जो फेल नजर आते हुए, अरे कल जो अक्षय सिंह की जो मौत हुई पुलिस के बंदोबस्त में था, किस तरह से उसको गोली मारी? वो तो इन्वेस्टिगेशन का विषय है, फिलहाल यहाँ पे टॉपिक अलग है। अब कल की आपने बात की ना, मैं आपको बताता हूँ, कल महाराष्ट्र के इतिहास में इतनी बड़ी रैली नहीं निकली थी जो कल निकली है। सिर्फ पूरे महाराष्ट्र के लोग, तमाम जो भी आप बोलो, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का होने दो, कहीं से भी एफिलिएशन रखने दो, पूरे के पूरे मुसलमान कल रास्ते पे उतर गए हुजूर मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में। और आपने देखा कितना प्यार मोहब्बत से आए, सब औरंगाबाद में जमा हुए, वहां से आए, हम सब मिलकर थाना में हम रुके, थाना में हमने मेमोरेंडम दिया कमिश्नर को और वहां के कलेक्टर को। हमने कहा 4 मांगे थी। मांग नंबर 1, रामगिरी को अरेस्ट करो। मांग नंबर 2, नितेश राणे को अरेस्ट करो, जिनके खिलाफ एफआईआर है। मांग नंबर 3, मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को रिहा करने की कोशिश करे महाराष्ट्र की सरकार। मांग नंबर 4, एक ऐसा कानून बनाया जाए हेट स्पीच के ऊपर, जो इस तरह के नफरती चिंटू जो बयानबाजी करते हैं उनको लागू हो, उनको अरेस्ट करे। 4 मांग हमने दिया है। अब देखते अगर नहीं हुआ तो इससे बड़ा एहतजाज किया जाएगा रस्तों पे आकर, संवैधानिक तौर से। वारिस भाई, एक तरफ नफरती चिंटू का जिक्र आपने किया, दूसरी तरफ रुबीना रिजवी जी जिन्होंने आज ये प्रोग्राम मुनक्किद किया था सीरत नबी पर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारक गैरों के बीच में भी आम हो, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, उन्होंने बुलाया, प्रोग्राम उनका है, तमाम मुख्तलिफ सियासत पार्टियां, आइडियोलॉजिकल डिफरेंस होते हैं, मगर यहाँ तो प्लेटफॉर्म एक था, ये तो प्रॉफिट फॉर ऑल का था। अगर वो होते रुकते तो मुझसे सवाल करते कि आप जिस प्रोग्राम में आए हो आज, ये तो हुजूर मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के लिए बयान करने का प्रोग्राम है, तो आपके जो लोग हैं उसके खिलाफ नफरती भाषण कर रहे हैं। हम सवाल करते हैं उनको, लेकिन वो मिले नहीं हमको। बहरहाल हम तो हर फोरम पे सवाल करते थे, करते रहेंगे। हम सवाल करेंगे, हमारा जवाब तो उनका ये होना चाहिए कि उनको अरेस्ट करेंगे। हमने कल संविधान भी दिया है उनको, संविधान इक्वालिटी की बात करता है। हाँ, जब चुनाव आता है तब इस तरीके की चीजें होती है करके लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? देखिए, आपकी बात, सवाल बिल्कुल दुरुस्त है। महाराष्ट्र में चुनाव आ रहे हैं, महाराष्ट्र में इनको डेवलपमेंट और विकास की बात करो, 0 है। इनको सर्वे में पता चल गया कि हार रहे बुरी तरह से, तो क्या किया जाए? आप तो ऐसे में अपने नफरती चिंटू को भेजते जहर उगलो। अब जहर उगलने के लिए सबसे बड़ा कौन है? मुसलमान। जाओ मुसलमान को गाली दो, इस्लाम को गाली दो, आराम शनाब बकवास करो, अपनी सियासत रोटी चमकाओ। मगर राज्य का जो भी नागरिक है समझदार हो गया, वो इनके बातों में नहीं आता, इनको समझना चाहिए। इस बार जो है नितेश राणे की जो सियासत उल्टी पड़ गई, अरे उसकी सीधी थी कब सीधी थी? उल्टी हो गई है और कुछ नहीं होने वाला। उसको बोलना तू कितना भी जिस तरह के बयानबाजी करते हैं, जिस तरह से मतलब उल्टी सीधी बातें करते हैं, वो इस बार तीर निशाने पे नहीं लगता। कि उसको ग्लैमर चाहिए, नाम चाहिए, पावर चाहिए,
बोलने वाला चाहिए, लेकिन वारिस पठान जैसी जुबान उसके पास नहीं है, उससे भारी बोल सकता हूँ मैं। ये कायदे कानून का पालन करते, वरना मेरी जुबान की आतिशबाजी का मुकाबला नित्य जैसे चिंटिया नहीं कर सकते। इतना क्या कहेंगे, मतलब आपको अच्छा लगा कि नहीं लगा? यही तो चाहते हैं, नफरत फैलाने के लोग फैला रहे हैं। यहाँ मोहब्बत की दुकान शुरू है, आ जाओ यार, सभी को बुलाया, इसीलिए तो बुलाया है कि भाई जिस तरह से हम लोग आज देश के दुर्भाग्य में बता रहा हूँ, मुझे वेदना होती है कि देश के प्रधानमंत्री से लेकर नीचे तक आप लोगों को जो बाजार बनाया, राजनीति का बाजार बनाया है, और रोजाना हम नफरत पैदा करने वाली बातें करते हैं, उसका बड़ा दर्द है। कल परसों जम्मू कश्मीर के चुनाव में, वहाँ चुनाव है, गृह मंत्री जी कह रहे हैं हम मुसलमानों को ईद के त्योहार पर 2 सिलेंडर मुफ्त देंगे। अरे भैया जॉब दे दो, सिलेंडर खरीद लेंगे हम, कोई दिक्कत नहीं हमें सिलेंडर खरीदने में। लेकिन अगर देना ही है तो जम्मू कश्मीर क्यों? हमारे मुसलमान भाई पूरे देश में है, सभी मुसलमान भाई को देश में दे दो मुफ्त में। ये जो अगर कोई दूसरा करता तो वो प्रधानमंत्री कहते ये रेवड़ी बांट रहे हैं, तो ये रेवड़ी नहीं तो क्या बेवड़ी है? क्या है ये? इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि हम उनमें से है कि जो देश के संविधान को मानने वाले हैं, जो लोग देश की संविधान को तोड़ना चाहते हैं, उसको मानते ही नहीं, सच बताओ तो। और जितनी भी न्यायिक संस्था है, मैं शब्द प्रयोग कर रहा हूँ, न्यायिक संस्था है, उस संस्थाओं को कल ही, पिछले हफ्ते ही हमारे आदरणीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा ये तो पिंजरे का पोपट है, पिंजरे का पंछी है। इसका मतलब क्या है? सोचो तो, जुडिशरी होने दो या सीबीआई होने दो, ईडी होने दो, इनकम टैक्स होने दो, ये कोई और सारे डिपार्टमेंट एक ऐसे बन गए कि बस उनके गुलाम बने। और कहा इलेक्शन कमीशन नहीं चुप बोलना भैया, सभी गुलाम बनकर काम कर रहे हैं, देश की संविधान को ठेस पहुंचा रहे हैं। हिम्मत नहीं इनमें से किसी की, ये गलत हो रहा है बोलने की भी, ये तो दुर्भाग्य है देश का। इसलिए हमें संगठित होना है, और जो लोग चाहते हैं कि यहाँ दीवारें पैदा करें, नफरत पैदा करें, हिंदू मुस्लिम जात पात धर्म के आधार पर, उसको ठुकराना है, मजबूती से इकट्ठा रहना है। थोड़ा सा बच गया रे, शोले वाला डायलॉग, बच गया रे। यहाँ अभी चुनाव है, चुनाव के लिए सारी राजनीति चल रही है। रोजाना आप देख लो कि रोजाना कुछ न कुछ सरकार घोषित करती है, लेकिन वही सरकार दुर्भाग्यवश जब हमारी महिलाओं पे अत्याचार होती है तो कानून व्यवस्था ध्वस्त हुई है। कुछ नहीं है, कानून कहाँ है, रोजगार कहाँ है? हमारे ये जवान बच्चे सब घूम रहे हैं ना ग्रेजुएट लेके। इसलिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं, इसके माध्यम से ये बड़ा अच्छा कार्यक्रम रिजवी कॉलेज में लिया गया, सभी को बुलाया, दिल खोलकर बोलो, लेकिन दिल और जुबान एक बात करे, इतना ही मैं कहता हूँ। जुबान पे एक और दिल में अलग, वो हमारी औलाद नहीं है, बाला साहब ठाकरे जी की औलाद है। जो जुबान पे है वही दिल में है, इतना ही ध्यान में। तमाम लोगों को खोले और बहुत सारी वेलफेयर की स्कीम चलाई वो, और जो राज्यसभा में एमपी रहे ऐसे हमारे सरपरस्त अख्तर हुसैन रिजवी साहब, स्टेज पे बैठे हुए हमारे सभी साथी, दानवे साहब, अमीन पटेल साहब, आसिफ कुरैशी साहब, अरविंद सावंत साहब, वारिस पठान साहब, इब्राहिम भाई, इकबाल मेमन ऑफिसर साहब, और सभी गोल्डी से आए हुए हजरत मौलाना, और सभी स्टेज पे बैठे हुए सभी मौजूद हजरात, इस स्कूल कॉलेज के प्रिंसिपल्स, टीचर्स, सभी स्टूडेंट्स। सबसे पहले मैं एडवोकेट रुबीना रिजवी साहिबा और उनकी पूरी टीम ढेर सारी मुबारकबाद देना चाहता हूं कि उन्होंने ईद मिलादुन नबी के मौके पर प्रॉफिट फॉर ऑल, सरकार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो पैगाम है, उस बनिस्बत से एक अच्छा
प्रोग्राम का इनेकाद यहाँ पर इन्होंने किया और 2 MLAs को यहाँ पर उनका इस्तेकबाल भी किया गया और एक अच्छा महत्वपूर्ण तरीके का प्रोग्राम का इनेकाद यहाँ पर किया है। दानवे साहब ने बहुत सारी बातें यहाँ पे की। उन्होंने कहा कि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सभी के लिए, बिल्कुल दानवे साहब प्रॉफिट फॉर ऑल, हमारे जो पैगंबर है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन पर एक आयत ही उतरी है, वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ऐ नबी आपको सारे आलम के लिए बनाकर रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा जा रहा है। तो आप सारे आलम के लिए रहमत बनकर आए, आप सिर्फ मुसलमानों के लिए रहमत बनकर नहीं आए। अगर मुसलमानों के लिए बनकर आए होते तो रहमतुल लिल आलमीन का लफ्ज नहीं होता बल्कि मुस्लिमीन का लफ्ज होता। तो इससे ये साफ है कि आप सारे रहमत के लिए, सारे आलम के लिए रहमत बनकर आए और सबको, पूरी दुनिया को प्यार, मोहब्बत, इंसानियत, अमन, शांति, भाईचारगी, ह्यूमैनिटी, सब वो पैगाम दुनिया को उन्होंने 1400 साल पहले दिया। 1499 साल उनकी दुनिया में तशरीफ आवरी का हुआ है। इस साल, अगले साल 1500 साल जश्न पूरी दुनिया मनाने जा रही है। तो आपका पैगाम यही है, प्यार और मोहब्बत और भाईचारगी। इस्लाम में, नबी की सुन्नत में नफरत की जगह है ही नहीं, गुंजाइश ही नहीं हो सकती। और सिर्फ आपने पैगाम नहीं दिया बल्कि आपने अपनी हयात तैयबा में, अपनी जिंदगी में अमल कर कर, इंप्लीमेंट करके दिखाया कि अमल क्या होता, इंसानियत क्या होती है, भाईचारगी क्या होती है, अपने बड़ों की इज्जत कैसे की जाती है, छोटों पर शफकत का हाथ कैसे रखा जाता है, पड़ोसी के हुकूक क्या है, जिस मुल्क में रहो उस मुल्क से वफादार बन के रहो, हुब्बुल वतनी का दर्द अगर किसी ने इस दुनिया में किया तो हमारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और आज 2 फुट के लोग आके हमको सबक सिखाते हैं, बोलते हैं घुस के मारेंगे। अरे बोलते 2 फुट के लोग आके बोलते हैं घुस के मारेंगे। अगर 2 फुट के लोग घुस के मारेंगे तो 6 फुट के लोग क्या घर बैठे रहेंगे बल्ली पहन के? ये सब भाषा महाराष्ट्र में ठीक नहीं। जो लोग इस तरह की बात करते हैं उन्हें समझना चाहिए, राजनीति अपनी जगह पे है, सियासत अपनी जगह पे है, लेकिन इंसानियत, भाईचारगी अपनी जगह पे है। हमें उसको देखना चाहिए। भाईचारगी रहेगी, इंसानियत रहेगी तो हमारा महाराष्ट्र, हमारा राज्य, हमारा शहर, हमारा देश तरक्की की राह पर आगे बढ़ेगा। बोलने के लिए बहुत लोगों के मुंह में जबान है, लोग बहुत सारी बातें कर सकते हैं, लेकिन हम लोग ऐसी चीजों को बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देते। और दानवे साहब, ऐसे लोगों की बात को सर्दी जुकाम से ज्यादा अपने को अहमियत देनी नहीं चाहिए, इनके बारे में चर्चा ही नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये लोग समाज को दूषित करने वाले लोग हैं। ऐसी बात करके समाज में नफरत पैदा करके माहौल खराब करने की कोशिश और राजनीति, ओछी राजनीति करने वाले लोगों से ये शहर और ये राज्य नहीं चल सकता। मैं ज्यादा लंबी बात नहीं करना चाहता हूं। मैं आज के इस मौके पर यही कहना चाहता हूं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो पैगाम है, प्रॉफिट फॉर ऑल, उनका जो पैगाम है, उस पैगाम को हमें आम करने की जरूरत है, लोगों के बीच में पहुंचाने की जरूरत है, चाहे ऐसे जलसे हो, मीटिंग्स हो, प्रोग्राम्स हो, ताकि एक दूसरे के बारे में जो कुछ लोग, मुट्ठी भर लोग गलत फहमियां पैदा करके इस्लाम फोबिया के नाम पर जिस तरह से नफरत पैदा करना चाहते हैं, उस नफरत को दूर करने का काम हम सारे लोग मिलजुल कर करें और भाईचारगी को आगे बढ़ाने का काम करें, ताकि प्यार और मोहब्बत और भाईचारगी का पैगाम घर घर तक पहुंचाने का काम किया जा सके। ये मैं आज के इस दिन कहना चाहता हूं। मैं फिर से
एडवोकेट रुबीना जी और उनकी पूरी टीम को, और रिजवी साहब जो हमेशा हम लोगों की सरपरस्ती करते रहते हैं, उनको भी बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज, जय हिंद, जय भारत। Jazakallah Naseem Sahab. I request the team that we would like to felicitate. मुस्तफा पर जो रिजवी कॉलेज में जो प्रोग्राम रखा था, आप यहाँ पर तशरीफ लाए, क्या कहेंगे इस मौके पर? नहीं, देखिए, सबसे बढ़िया एग्जाम्पल जो है ना कि सीरतुन नबी क्या थी, वो ये है कि मैं बात नहीं करना चाहता आज कौन हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या बोल रहा है, लेकिन आप ये देखो, आज हमने उस पार्टी के लीडर को स्टेज पे बुलाया था जो पूरे महाराष्ट्र में गंदगी फैला रहे हैं। ये है सीरतुन नबी, डायलॉग है सीरतुन नबी, डिस्कशन है सीरतुन नबी। और मैं आज कहना चाहता हूँ कि दुनिया के अंदर आप कोई सा भी चार्टर उठा लो, चाहे वो यूएन का चार्टर हो ह्यूमन राइट्स के लिए, चाहे वो यूएन का चार्टर हो गर्ल्स के एजुकेशन के लिए, चाहे वो यूएन का चार्टर हो कि गर्ल्स का जो जिस तरह से पेट में ही मार दिया जाता था, उसके लिए दुनिया के अंदर सबसे पहली आवाज़ थे तो हमारे नबी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। उस वक्त बच्चियों को दफना दिया जाता था। आज आप अगर सेक्स रेशियो देखेंगे तो मुसलमानों के अंदर बेहतर सेक्स रेशियो होता है किसी और कौम के मुकाबिल। सबसे बड़ी बात मैं ये कहूँगा कि उस वक्त पूरी दुनिया के अंदर ये लड़ाई चलती थी कि कोई राजा है, कोई गुलाम है, और हमारे नबी ने सबसे पहली अजान हजरत बिलाल से दिलाई थी। ब्लैक्स की लड़ाई आज भी चल रही है, 1500 साल बाद भी अमेरिका के अंदर और पूरी दुनिया के अंदर गोरे और काले की लड़ाई है। आज से 1500 साल पहले हजरत बिलाल से पहली अजान दिला के उन्होंने उसके लिए एक मैसेज दिया था। बहुत सारी बातें हैं बोलने के लिए, मैं पूरी किताब लिख सकता हूँ कि ह्यूमन राइट्स के ऊपर, डिस्कशन के ऊपर, डायलॉग। आज इजराइल जो है नहीं मान रहा, लेकिन यूएन वाले क्या बोलते हैं कि किसी भी जंग के अंदर बुजुर्गों को हमला नहीं करना चाहिए, बच्चों को हमला नहीं करना चाहिए, औरतों को हमला नहीं करना चाहिए। तो ये किसने दिया कॉन्सेप्ट? ये प्रॉफिट मोहम्मद ने दिया कि आज एक लीडर कैसा होना चाहिए, उसके लिए कौन बता के गया? तो ही इज वन ऑफ द मोस्ट, मतलब दुनिया की अगर सबसे बड़ी कोई पर्सनालिटी है जो इस दुनिया में आए वो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, कौन क्या कहता है छोड़िए, उनकी जिंदगी को हम पढ़ें, उनकी जिंदगी पे अमल करें। और उनकी जिंदगी का अमल करना ये नहीं है कि हम सिर्फ नमाज पढ़ लें उनके तरीके से। पड़ोसी से कैसे रहना है उन्होंने अपनी जिंदगी में बताया, बच्चे के क्या हुकूक हैं आपके उन्होंने अपनी जिंदगी में बताया, बीवी के क्या हुकूक हैं उन्होंने अपनी जिंदगी में बताया। तो अगर आपको अपनी जिंदगी जीना है, आप अरे नाखून कैसे काटना है ये भी बता के गए वो, और आज लोग उसको साइंटिफिक तरीकों से जोड़ते रहते हैं। पढ़िए पढ़िए पढ़िए, इकरा इकरा इकरा। जितना हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़ेंगे और उनको अपनी जिंदगी में बनाएंगे, वो बेहतर समाज बन सकता है। एक ही मैसेज है, आप जिस देश में रहते हो अगर आप उनकी टीचिंग्स को मानेंगे वो समाज बहुत बेहतर बन सकता है। जिस तरीके से मैसेज आ रहा था कि इन्होंने आशीष शुलार को क्यों बुलाया, और मैं ये सोच रहा था कि मैं नहीं आऊंगा, लेकिन अब मुझे लगता है उन्होंने ठीक किया। क्यों? क्योंकि हम गुस्सा तो, हमारा तो काम है ना डिस्कशन करना। हमने आज उसी पार्टी के लीडर को बुला के मैसेजिंग दे दी जो पार्टी पूरे देश के अंदर माहौल खराब करने की कोशिश कर रही है। तो ये है सीरतुन नबी। थैंक यू सो मच। मैंने पहले भी कई मरतबा कहा है, मैं आज शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ डॉक्टर अख्तर हुसैन रिजवी साहब का और एडवोकेट रुबीना रिजवी साहिबा का, जिन्होंने यहाँ बुलाकर मुझको ये एजाज़ दिया, मुझको सम्मान दिया। मगर ये अवार्ड का हकदार मैं नहीं हूँ, मेरे इलाके के लोग हैं जो मेरे साथ रात दिन काम करते हैं, जिसकी वजह से मुझको ये अवार्ड मिला है। सर, जिस तरह का माहौल है अभी मिला जा रहा है, इस विषय में क्या कहेंगे? किस तरह मुल्क में माहौल खराब किया जा रहा है और एक तरफ देखिए आज बहुत ज़रूरी है हम इस टॉपिक पे बात करें। ये आज जो प्रोग्राम यहाँ पे किया गया है सीरतुन नबी, ईद मिलादुन नबी के मौके पर, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और आपने देखा कि यहाँ पर अपनी तकरीर करते हुए लीडर ऑफ अपोजिशन अंबादास दानवे ने क्या कहा, आपने देखा कि खासदार अरविंद सावंत ने क्या कहा, आपने देखा कि एडवोकेट आशीष शेलार ने क्या कहा। लोगों का सबका यही मानना है कि चंद लोग जिसको हम गिनती में भी नहीं ले सकते, वैसे लोग इस देश के अंदर अमन और शांति को खराब करना चाहते हैं। मैंने एक बात अंदर कही, अगर आपने सुनी होगी तो, अगर आसमान में कोई आदमी थूकता है तो थूक उसके मुंह पे गिरता है, आसमान तक नहीं पहुंचता है। तो आज अंबादास दानवी ये कहते हैं कि नबी करीम मोहम्मद मुस्तफ़ा जो प्रॉफिट है वो सबके है, वो सबके लिए आए हुए हैं। उन्होंने जो मैसेज दिया है, जो पैगाम दिया है अमन का, शांति का, एकता का, भाईचारे का, वो सबके लिए है। और मैं आपसे एक कदम आगे बढ़ के कहता हूँ कि इस्लाम के अंदर
अगर किसी बेकसूर आदमी को अगर आप मारते हो तो आप पूरी इंसानियत का कत्ल कर देते हो। जो मज़हब में ये बात लिखी है, और हर मज़हब हर आदमी को अपने मज़हब को मानने का अधिकार है। आप मुझको एक मज़हब बता दो जिसके अंदर अहिंसा दिखती हो। हर मज़हब जो है उसमें सिर्फ और सिर्फ अहिंसा है, हिंसा की कोई जगह नहीं है। हिंसा को कोई आदमी लाइक नहीं करता है, कोई इंसान लाइक नहीं करता है। हर मज़हब के अंदर होता है कि आप अमन के साथ रहो, आप सुकून के साथ रहो, आप चैन के साथ रहो और दूसरों के भी रहने दो। तो इसलिए हमको जो हिंसा है उससे दूर रहना चाहिए और अहिंसा के साथ में रहना चाहिए। नफरती चिंटू जो कंटिन्यूअसली अपने नफरत की भाषण देते आ रहे हैं, मुसलमानों को चैलेंज कर रहे हैं, मस्जिदों में घुसकर मारने की बात कर रहे हैं, और दूसरी तरफ रुबीना अख्तर जैसे मुस्लिम अभी समाज में मौजूद है जो जिन्होंने आपको की सीरत मुबारक पेश किया। देखिए, मैं अक्सर ये कहता हूँ कि आज जो प्रोग्राम एडवोकेट रुबीना अख्तर रिजवी साहिबा ने किया है, वो जो ईद मिलादुन नबी का जो प्रोग्राम है ना, वो सिर्फ एक दिन का नहीं होना चाहिए, ये 365 दिन और अपनी पूरी ज़िंदगी का होना चाहिए। क्योंकि हमको उनका मैसेज रोज़ देना है। हम नमाज रोज़ पढ़ते हैं, उसी तरह से ये मैसेज जो मोहब्बत का है, अगर आप एक आदमी से अच्छी बात दिन में एक बार कर दोगे, जो हमारा बिरादरान वतन है उसे एक बार अच्छी कर दोगे, वो ज़िंदगी भर के लिए आपका दोस्त बन जाएगा। तो अगर हम रोज़ एक नया दोस्त बनाते हैं तो 365 दिन में हम 365 नए दोस्त बनाएंगे, तो हमारी ज़िंदगी में हज़ारों लाखों नए दोस्त बना लेंगे। तो मेरा ये आपके माध्यम से आज का ये जो एडवोकेट रुबीना रिजवी साहिबा का प्रोग्राम है, वो एक मैसेज है लोगों के लिए, उन लोगों के लिए जो नफरत फैलाना चाहते हैं कि हमारा जो मकसद है, हमारा जो है मैसेज है, वो पैगाम का है। हम मोहब्बत देना चाहते हैं और वो मोहब्बत का मैसेज हम लेके आगे जाएंगे। पीछे हो ना भाई, पीछे हो ना, और पीछे हो ना, और पीछे हो ना भाई। स्टार्ट करें। हाँ, थोड़ा आगे भाई, अरे तुम गलत आगे पकड़ेगा ये जान सर, आज इथे आपण आलात, काय सांगाल मोहम्मद पैगंबर यांच्या कार्यक्रमात आपण आले? रिजवी ग्रुप के तरफ से ये प्रोग्राम यहाँ रखा था। मुझे खुशी हुई यहाँ आके, क्योंकि मोहम्मद पैगंबर जी के जो इस समाज को, विश्व को जो उन्होंने संदेश दिया है, मैसेज दिया है, उसका यहाँ फिर एक बार, क्योंकि हर समाज, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, क्रिश्चियन हो, सब हिंदुस्तानी एक साथ रहना चाहिए। और मोहम्मद पैगंबर जी ने जो संदेश दिया है वो सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, तो पूरे विश्व के लिए दिया है। और मुसलमानों के साथ पूरे विश्व ने भी वो संदेश अगर ठीक से ले तो इस समाज आगे जाएगा, प्रगति करेगा और सब एक जगह रहेंगे। ऐसी एक संकल्प हमने इस माध्यम से किया है और ये अच्छी बात है। दादाजी, जिस तरीके से देखा जा रहा है प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम को लेकर गुस्ताखियां की जा रही है, बहुत सारे अपशब्दों की टिप्पणी की जा रही है। जिस स्वामी ने इस तरीके की टिप्पणी आप सल्लल्लाहु के ऊपर की है, उसके ऊपर 60 से ज़्यादा FIR हो चुकी है, लेकिन अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। आप इस प्रोग्राम मैं समझता हूँ जो मोहम्मद पैगंबर जी पे ऐसे, वो जब जिंदा थे वो भी उनके उस टाइम भी उन पे ऐसी टिक्का टिप्पणी हुई है, उस टाइम भी लोगों ने उनको तकलीफ दी है और अभी भी लोग तकलीफ उनके विचार को देते होंगे, तो उससे उनका विचार और मजबूत होता है, उससे ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता। सर, अमन शांति बनी रहना चाहिए। बिल्कुल बनी रहनी चाहिए। महाराष्ट्र में, देश में, हिंदुस्तान में अमन और शांति बनी रहनी चाहिए। सर, आप क्या मैसेज देंगे? आज आप सीरतुन नबी के इस प्रोग्राम में आए हुए थे, आप क्या मैसेज देंगे? मैंने तो कहा ना, सभी धर्म के लोगों ने अमन और शांति बना के इस समाज को आगे लेने का प्रयत्न सबने मिल